species in the red list? Let's see. What were the criteria? कोई करुणा आप बताओ, एटलीस्ट नाम बता दो. 7 there were categories, है ना? We divided them into different categories. IUCN uses this criteria to list species in different red lists. Is there? Yes or no? We did. IUCN एक ही इंस्टीट्यूशन किया था ना हमने? कोई और इंस्टीट्यूशन किया था या बस IUCN किया था? बस IUCN किया था ना, है ना? We studied about red list. Okay, in that there are 2 types of pages. Okay, one is pink page and another one is a green page. Add to that, आपने वो कैटेगरीज लिख ली थी, है ना? 7 कैटेगरी क्राइटेरिया लिखे थे. उसके बाद जो रेड लिस्ट बुक होती है उसमें जो पेजेस के कलर्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स. ओके, वन आर पिंक कलर्ड पेजेस, अनदर वन आर ग्रीन कलर्ड पेजेस. ओके, दीज आर विच वन? पिंक कलर्स विच आर इन क्रिटिकल कंडीशन. The species which are in critical condition are mentioned in this. Okay, critical, or you can say endangered species. Getting? It include information regarding the critical condition, or you can say endangered species. वो तो रेड लिस्ट में क्राइटेरियाज हो गए, किसमें किसको वल्नरेबल में किसको डालना है, एक्सटेंट में किसको डालना है, वो समझे. 90%, 70%, 50% एक्सटिंक्शन रेट. ओके, इज दैट क्लियर? Except that there is a green page is used for species that were formerly endangered but now it is in favorable positive condition. ग्रीन से क्या रिफ्लेक्ट होता है? पॉजिटिव. ग्रीनरी मतलब कि पहले endangered थे बट अब फेवरेबल कंडीशन में आ गए हैं. ठीक है, अब क्या है, ऐसी कंडीशन हो गई कि उनकी पॉपुलेशन क्या इंक्रीज हो गया है. दे आर नो लॉन्गर थ्रेटेंड. गेटिंग द मीनिंग? ठीक है. इट इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज. ओके, रेड पिंक बुक पेजेस एंड दिस ग्रीन पेजेस you can write used for species that were endangered. That were endangered but have recovered and no longer threatened. थ्रेटेन में 3 कैटेगरीज थी, राइट? वी स्टडीड ना, थ्रेटेन वाज द कैटेगरी. इन दैट स्पेसिफिकली आई टोल्ड यू टू लुक आफ्टर दैट, है ना? 3 कंडीशंस थी ना. व्हाट वर दे? वल्नरेबल, एंडेंजर्ड and critically endangered. ठीक है. So now that species has come out of, मतलब conservation efforts were so positive that their now species has been now in a green pages and it has recovered. Okay, it is no longer in the threatened category. उनकी population increase हो गई है. This is the only means. Okay, ये क्लियर हो गया. तो IUCN से रिलेटेड चीजें हो गई. अब नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन जो हम देखेंगे वो है साइट्स. Sites. Write down next. First institution done, international IUCN. Second you write sites. Convention on International Trade. Convention on International Trade. Convention on International Trade in Endangered Species. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. What is the short form we use? We use as a CITES. Okay. It is also called Washington Convention. ठीक है. Another name is called Washington Convention. ठीक है. It is a multilateral treaty. Multilateral treaty multilateral treaty
involves 184 parties. 184 parties are there, member countries. Came into force in 1975. ये कुछ स्पेसिफिक डेटा है जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए. ओके, 1975. Like in CBD, Convention of Biological Diversity, there was COP was happening. Here also we have CITES COP. CITES COP. CITES COP, which happens every 2 to 3 years. Okay, CITES COP happens every 2 to 3 years. ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस. इसको साइट्स COP हम क्या कहेंगे? कैन यू सी रेड, इस कलर इज विजिबल ना, दिख रहा है ना रेड कलर? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस. ओके, so last which was held, it was the CITES COP 19 held in Panama. Last CITES COP 19 was held in, you remember, at Panama. ठीक है, in November 2022. जो लास्ट COP हुआ है, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, किसकी मीटिंग हो रही है? साइट्स की. ठीक है, कितने मेंबर्स है? 184. एंड व्हेन इट वाज इनॉग्रेटेड, व्हेन इट केम इनटू फोर्स 1971. सो दिस स्पेसिफिक पॉइंट वाइज डेटा आपको स्पेसिफिक याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, स्पेसिफिकली जो न्यूज में रहे वो तो इंपॉर्टेंट रहते ही. ठीक है, लास्ट हुआ पनामा में नवंबर 2022. Okay, write down next paragraph. You write, each country appoints management authorities. Each country appoints management authorities overseeing the licensing system. Authorities overseeing the licensing system and scientific authorities advising on trade effects on species status. I am repeating it. Each country appoints management authorities overseeing the licensing system and scientific authorities advising on trade effects on species status. Okay, so this is what this CITES looks after. the क्या ट्रेड हो रहा है, endangered species का कहीं ट्रेड तो नहीं हो रहा, इंटरनेशनल लेवल पे what is happening. So they regulate and monitor the international trade and they stop any illegal trade is happening of the endangered species or not. Okay, so who is the management authority in India? You will write down, management authority in India is Director of Management Authority in India in Director of Wildlife Preservation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, MOEFC. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के कौन एक डायरेक्टर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, वो किससे कांटेक्ट में रहते हैं? ही इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द साइट्स अथॉरिटीज. ओके, ही इज अपॉइंटेड एज द मैनेजमेंट अथॉरिटी. ओके, Wildlife Preservation, Director of Wildlife Preservation. He is under this ministry. Okay, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. परमिट इशुएंस कौन करता है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. परमिट इशुएंस पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू साइट्स मैनेजमेंट अथॉरिटी लिख ली, डायरेक्टर. ओके, डायरेक्टर प्रिजर्वेशन. उसके बाद आप लिखोगे लाइसेंस. लाइसेंस कौन इशू करता है? ठीक है, लाइसेंस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो.
ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB। स्पीशीज, अब साइट्स के अंदर स्पीशीज, जैसे IUCN में हमने देखा था कैटेगरीज थी, ओके, स्पीशीज वर लिस्टेड इन डिफरेंट कैटेगरीज, हियर देयर आर स्पेसिफिक अपेंडिसेस आर मेड, ओके। साइट्स के अंदर 3 अपेंडिक्स हैं, दैट्स हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज इज मेड, ओके। फर्स्ट, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अंडर वन, ठीक है, 3 कैटेगरीज आर देयर। क्या हुआ रोना, कोई दिक्कत है? हाँ ऋतिक, चलो ठीक है। देयर आर 3 कैटेगरीज, प्रोटेक्शन कैसे मिलते हैं? 3 के, ठीक है। फर्स्ट वन इज हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ऑल द स्पीशीज व्हिच नीड हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन व्हाइल ट्रेडिंग, दे आर प्लेस्ड इनटू फर्स्ट कैटेगरी। देन सेकंड, कमर्शियल ट्रेड इज अलाउड प्रोवाइडेड सर्टेन गाइडलाइंस दी जाती हैं, ओके, कुछ कंट्रोल्ड लेवल पे ट्रेड हो जाता है। यहाँ तो प्रॉपर्ली रेस्ट्रिक्टेड होंगे वो स्पीशीज, यहाँ पे कंट्रोल्ड वे में ट्रेड होगा, ठीक है। एंड इन थर्ड वन, यहाँ पे क्या है, एक कंट्री में उसने रिक्वेस्ट, एक कंट्री में क्या है वो प्रोहिबिटेड होगा स्पीशीज का ट्रेड, एंड इट विल बी रिक्वेस्टिंग द साइट्स टू कीप इट अंडर द मॉनिटर, ओके। इसमें क्या होगा, मॉनिटर, एटलीस्ट वन कंट्री दैट हैज रिक्वायर्ड असिस्टेंस टू हेल्प, मतलब एक कंट्री में वो थ्रेटेंड है ना, तो वो रिक्वेस्ट करेगी साइट से कि इसके ऊपर आप रेगुलेशन करो, तो वो स्पीशीज यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल की एक स्पीशीज में इंपॉर्टेंस है तो इसमें डाला, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड में हम अगर रेगुलेट कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए तो यहाँ पे जिसका बहुत ज्यादा इलीगल ट्रेड होता है उन स्पीशीज को हम इसमें डालेंगे। सेकेंड ट्रेड में कि कुछ कॉमर्शियल ट्रेड अलाउ होगा, मतलब इससे कम प्रोटेक्शन, गेटिंग। सो राइट डाउन, CITES categorizes species, CITES categorizes species into 3 appendices, DICES हो जाता है, ठीक है। 3 appendices, this is plural, this is singular, okay, appendix 1, ठीक है, into 3 appendices. First, appendix 1 for species threatened with extinction. First one for species threatened with extinction. इसमें क्या बहुत एक्सेप्शनल केसेस में अलाउड होगा ट्रेड, ओके, सिर्फ कैप्टिव ब्रीडिंग या प्रोटेक्शन पर्पस से। मान लीजिए कोई स्पीशीज बनने वाला है, उसकी लेबोरेटरी मान लीजिए USA में है, ठीक है, तभी उसका ट्रेड यहाँ USA, इंडिया से USA में अलाउड किया जाएगा, वरना उसका ट्रेड दूसरे से दूसरे इंटरनेशनल बॉर्डर्स में उसका ट्रांसफर अलाउड नहीं होगा, ठीक है। ओनली फॉर द प्रिजर्वेशन ओनली दैट ट्रेड विल बी अलाउड, ओके, ट्रांसपोर्टेशन विल बी अलाउड। सेकेंड वन इंक्लूड, अपेंडिक्स सेकेंड इंक्लूड्स स्पीशीज not immediately endangered, but requiring controlled trade, to protect their survival, ओके, अभी वो खतरे में नहीं है, एकदम एक्सटेंड नहीं होने वाले, बट रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड, मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायरिंग कंट्रोल्ड ट्रेड टू प्रोटेक्ट देयर सर्वाइवल। आई एम रिपीटिंग, इंक्लूड स्पीशीज नॉट इमीडिएटली एंडेंजर्ड बट रिक्वायरिंग कंट्रोल्ड ट्रेड टू प्रोटेक्ट देयर सर्वाइवल। थर्ड, encompasses species, include species, you can write include species protected in at least one country, species protected in at least one country and seeking assistance from CITES parties, seeking assistance from CITES parties in controlling the trade.
Okay, understood about the sites? So can you repeat what you have studied about sites? अभी हमने क्या क्या पॉइंट देखे स्पेसिफिक? So what is sites? If you have to say in one word, one line, we have written so much. What is sites? Specifically, what it look into? Species which are on the verge of extinction. So it looks after that no illegal trade happens of those species. Okay. Then next, Nisha, what you have studied? Next, what we read? कैटेगरीज, अपेंडिसेस, कैटेगरीज नहीं, कैटेगरीज कौन सी? अपेंडिक्स ही बोला था, अपेंडिसेस इसमें आएंगे, ठीक है, उसी नाम से आप बोलोगे, कैटेगरीज में नहीं बोलोगे, क्योंकि अपेंडिक्स 1 इसमें बोलोगे, है ना, 1 2 3, ठीक है। अब उसमें हम कैसे क्लासीफाई करते हैं स्पीशीज को? 3 कैटेगरीज में, 3 अपेंडिसेस में। पहले में क्या है? फर्स्ट में जो एकदम एक्सटिंक्शन है उनको बचाने के लिए उसमें रखेंगे, ठीक है, थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, ओके, विच नीड मोर अटेंशन। अगर आप उसको ट्रेड नहीं रोकोगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे इलीगली ट्रेड होगा, इट विल बी कंज्यूम। क्यों हम उन पर ट्रेड कर रहे हैं? इलीगल कंज्यूम करने के लिए तो एनिमल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं ना, काफी सारे एनिमल प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स एंड ऑल, काफी मेडिसिन में उनका यूज होता है ना। सो इन ह्यूमन ट्रीटमेंट यू कैन से, ओके, टू प्रोटेक्ट देयर सर्वाइवल। इन सेकेंड, not endangered but it needs protection, okay, for their survival, otherwise it will also go into the first category, okay. And third one, it is required specifically for one country. If there is facing survival problem in one country, so the countries request sites to look after that species also, okay. Is it clear? At least this much should be clear कि sites है क्या, किस चीज को मॉनिटर करता है ना। साइट्स मतलब इलीगल ट्रेड से रिलेटेड। अब यहाँ पे आप देखो एक बार, इसके अंदर वो कौन आता है? हेडक्वार्टर, राइट, जेनेवा, साइट्स हेडक्वार्टर, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, एंड इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। Next, one more line. It is a legally binding treaty. Whatever the countries are a part of it, they have to legally follow that. Okay? Legally binding. CITES is a legally binding. वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो होंगे वहां पे जो भी कंट्रीज इसकी पार्टीज होंगी तो वो उसको फॉलो करनी होंगी। गेटिंग? ऑलवेज रिमेंबर, अगर क्वेश्चन में इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, दैट आल्सो स्टेटमेंट में आ जाता है यूपीएससी में कि ये ट्रीटी लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है। दैट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, दिस इज लीगली बाइंडिंग, दिस इज एन एनजीओ, दिस इज अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर साइट्स इज अ लीगली बाइंडिंग, ओके, बट इट कैन नॉट ओवरपास द नेशनल लॉ। सपोज इंडिया में जो लॉ चल रहे हैं उसके ऊपर नहीं, अगर उसके रिलेटेड इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉज है तो नेशनल लॉज विल बी अबव दैट। गेटिंग द पॉइंट? ओके, चलो एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल आप लिख लो। अफ्रीकन राइनोसोरस इन वन, फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड, दिस ऑर्चिडेसी, this is a flower. This is a flower, okay, and this is toad, मतलब एक frog है. This is a Chilean toad. ओके, हाँ, तीनों के एग्जाम्पल है, 1 2 और 3। ये फ्लावर है, ORCHIDACEAE। दिस इज चिलियन टॉड, TOAD।
ऑर्डिडेसी, टॉड, फ्रॉग, मेंढक, मेढक हिंदी में, हिंदी मेढक, मेढक का बच्चा जो छोटा होता है ना, स्मॉल फ्रॉग, मेंढक. कैन यू रीड हिंदी? नो. But you speak in Hindi, I guess. You speak, na? You can speak. You learn from here. So it's good. Is it clear? Science is complete. Getting? Now next organization that we'll study about MIC. MIC. In that what we were writing about the endangered species को हम देख रहे थे, उनका illegal trade now endangered critical. यहाँ पे specifically we will talk about the elephants. Okay, it is an international MIC. Monitoring the, this is about MIC. Second organization we are doing. Third one. Okay, monitor MIC sites. Monitoring the illegal killing of elephants. Monitoring the illegal killing of elephants. Write down. It is an, write down. It is an international collaboration. It is an international collaboration initiated by CITES resolution. इनिशिएटेड बाय साइट्स रेजोल्यूशन, मतलब साइट्स में एक रेजोल्यूशन आई का हम सारे स्पीशीज को एक साथ देख रहे हैं, बट एलिफेंट्स नीड स्पेशल प्रोटेक्शन. ठीक है, इन 1997 रेजोल्यूशन इन 1997. इट एम्स टू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. इट इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन initiated by a CITES resolution in 1997. Okay, it aims to measure trends and cause of, it aims to measure trends and causes of, it aims to measure trends and causes of elephant mortality globally. Elephant mortality globally. Okay. Write down. Currently there are 28 MIC sites in Asia. 28 MIC sites in Asia. ठीक है. नेक्स्ट, इंडिया हैज 10 MIC साइट्स. इंडिया में कितने हैं? 10 MIC साइट्स. ठीक है, लेट्स लुक एट द वन. ठीक है, एक बार नाम देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे माइक साइट्स की आप लोकेशन भी देखेंगे, हम नाम भी देखेंगे साथ में. ओके, दिस विल हेल्प यू इन मेमोराइजेशन. ओके, फर्स्ट विल स्टार्ट विद द हियर उत्तराखंड, शिवालिक. दीज आर दी माइक साइट्स इन इंडिया. ओके, ओनली 10 आर देयर, तो आपको स्टेट वाइज उनके नाम भी पता होने चाहिए. गेटिंग? सो शिवालिक इज इन उत्तराखंड. ईस्टर्न द्वार्स वेस्ट बंगाल. सबसे ज्यादा आप देखोगे कहाँ पे एलिफेंट्स लोकेटेड है. एक तो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन. कैन यू सी द एरिया ऑफ वेयर एलिफेंट्स आर लोकेटेड, एंड इन द साउथ हब ऑफ एलिफेंट्स. कैन यू सी द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ एलिफेंट? अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ एलिफेंट बोला जाए कि नॉर्थ में पाए जाते हैं या वेस्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, तो नो, दे नॉट, द क्लाइमेट इज नॉट फेवरेबल फॉर द एलिफेंट्स. ओके, सो फर्स्ट इज शिवालिक in Uttarakhand, second Eastern Doas in the West Bengal, second, third one Chirang Ripu in Assam, third Chirang Ripu, fourth you write Dhang Patki, Assam, Chirang Ripu in Assam, Dhang Patki also in Assam, fourth, fifth one Deomali in Arunachal Pradesh, Deomali in Arunachal Pradesh.
नेक्स्ट गारो हिल्स, सिक्स्थ वन गारो हिल्स। रिटर्न नॉर्थ ईस्ट में देख ले कितने हैं। फर्स्ट आसाम, चिरांग, दहांग पटकी, देन वी हैव देवमाली, गारो हिल्स इन मेघालय, देन दिस मयूरभंज उड़ीसा, सेवेंथ वन मयूरभंज उड़ीसा। These places will slowly you will build up the capacity of learning these places, okay? ये important places रहते हैं सारे, बार बार repetitive आते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आएंगे, तो आप एक पहली बार में नया लगेगा बट धीरे धीरे फ्रीक्वेंट हो जाओगे तो कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है, नेम से। नेक्स्ट इन साउथ वी हैव मैसूर, एट्थ वन मैसूर, मैसूर इज इन कर्नाटका, नाइन्थ वयनाड, वयनाड इज इन केरला, ओके, देन नीलगिरी, टेंथ वन नीलगिरी, तमिलनाडु। So these are the 10 mic sites in India. Write one line. Have you written all the 10 names? तो लिख लो पहले आप। Write one line. Mike is entirely dependent on donor support. Donor, how he gets finances? Donor support, मतलब हम कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो यहाँ पे फंडिंग, व्हाट इज द फंडिंग मैकेनिज्म? इट इज डिपेंडेंट ऑन डोनेशंस, ओके। इन स्टेटमेंट इफ इट कम्स इट इज सपोर्टेड बाय यूएन और एनी गवर्नमेंट, नो, इट इज डिपेंडेंट ऑन डोनेशंस, तभी वो काम करता है, ठीक है। इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन डोनर सपोर्ट, ओके। इज इट क्लियर माइक के बारे में? ठीक है। अब एलिफेंट रिजर्व हम देख रहे हैं, एलिफेंट माइक साइज देखिए, तो इंडिया में जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं उनको भी हम एक बार देखेंगे। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह देखे थे आप लोगों ने घर जाके, एक बार मैप में जरूर देखना, ओके। दीज आर दी एलिफेंट रिजर्व्स, कहाँ कहाँ पे एलिफेंट रिजर्व्स हैं इंडिया में, ओके। सो इंपॉर्टेंट वन सा मार्क, मतलब मोस्टली सारे मार्क है यहाँ पे, तो ठीक है। शिवालिक, कुछ माइक साइट्स भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है, और ये स्पेसिफिकली इंडिया, वो तो इंटरनेशनल लेवल के माइक साइट्स हो गए। गेटिंग द डिफरेंस, माइक साइट्स आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड दीज आर द एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया, ओके। सो व्हाट आर दे? फर्स्ट तराई शिवालिक, तराई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिस इज 2, तराई उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड ये उत्तर प्रदेश नाम से, ER मीन्स एलिफेंट रिजर्व, गेटिंग। शिवालिक is in Uttarakhand. These two are in UP. Getting? एक बार नेम देख लेते हैं हम। ईस्टर्न द्वास, वेस्ट बंगाल, रीपूचरांग, आसाम, कामेंग इज इन अरुणाचल प्रदेश, ओके। कामेंग अरुणाचल प्रदेश, सोनितपुर, सोनितपुर इज इन आसाम। स्टेट तो क्लियर हो रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? ये नेम मैं क्यों पढ़वा रही हूँ आपसे यहाँ पे खड़े होके, क्योंकि आ जाते हैं कभी कभी नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये एलिफेंट रिजर्व, ये नेशनल पार्क, ये चारों साउथ में है, नॉर्थ में है, सब पीसीएस में आ चुका है, यूपीएससी में भी, ठीक है, स्पेसिफिकली नेशनल पार्क से रिलेटेड, ओके। तो सोनितपुर, वेयर इट इज इन आसाम, ओके। देन वी हैव दिहिंग पटकाई, दैट इज आल्सो इन आसाम। दिख रहा है वहां तक, पीछे तक क्लियर है ये इमेज? Then we have this South Arunachal, it is in Arunachal Pradesh. Then Khaziranga, Karbi Anglong, Khaziranga भी कहाँ है? आसाम में। Then Singphan Elephant Reserve, Singphan, this is in Nagaland. ये पूछा जाता है कभी कभी, सिंगफान और इंतंकी, इंतंकी क्या है? नागालैंड में है। This is इंतकी, INTANKI, ओके। ये नेशनल पार्क भी है, ओके। So this is in Nagaland, Entaki. This Singphon and Entaki both are in Nagaland.
Getting the location, यहाँ पे नागालैंड है. Then Dhansiri, Dhansiri is also in Assam. Dhansiri is in Assam. Then Garo Hills मेघालय. Okay, these are the elephant reserve. कुछ confusion हो रहा है? ठीक है. फिर आप यहाँ देखो, यहाँ वाला रीजन, दिस इज मयूरभंज. एक मयूरभंज यहाँ पे है, ठीक है, दैट इज वेस्ट बंगाल. ये वेस्ट बंगाल का था, ठीक है. ये सिंहभूम झारखंड है. सिंहभूम इज इन झारखंड. एंड दिस मयूरभंज इज ऑल्सो देयर. ठीक है, मयूरभंज, सॉरी यहाँ पे मयूरभंज है, ये मयूर झरना है. मयूर झरना से याद रखोगे वेस्ट बंगाल, मयूरभंज वेस्ट बंगाल. Getting the difference? मयूर झरना in West Bengal and मयूरभंज is in Odisha. ठीक है, two names, different names. मयूर झरना वेस्ट बंगाल, मयूरभंज उड़ीसा. ओके, देन सिंहभूम इज इन झारखंड. इससे क्या लोकेशन भी आपको याद होंगे. देन संबलपुर उड़ीसा एंड महानदी एलिफेंट रिजर्व इज इन ऑल्सो इन उड़ीसा. ओके, यहाँ पे आप देखो छत्तीसगढ़, बादलखोल एंड लेमरू, बोथ आर इन छत्तीसगढ़. देन वी हैव साउथ में आप देखो दंडेली काफी, अंशी दंडेली नेशनल पार्क, दंडेली, मैसूर, रायला. ओके, दीज आर द नेम. रायला इज इन आंध्र प्रदेश. अब एक बार केरला के देखो, केरला और तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं. ठीक है, सो इन केरला व्हाट वी हैव वायनाड, नीलंबूर, अन्नामुडी एंड पेरियार. These are the elephant reserves here also. And in Tamil Nadu, Nilgiri, Coimbatore, Annamalai, Srivilluputtur and Agastyamalai. Okay? So ऐसे कर करके आप जब मैप देखते हो तभी आपको याद होगा. Getting? ये हमारे elephant reserves हैं. This is the same thing. Okay? ये ज्यादा स्टेट वाइज क्लियर था इसलिए बताया. मैक्सिमम एलिफेंट रिजर्व्स यू रिमेंबर आर इन तमिलनाडु. तमिलनाडु दिख रहा है, तमिलनाडु और आसाम. तमिलनाडु एंड आसाम हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व. 5 बोथ. यहाँ पे भी आप देखो ये 5 है, आसाम में भी देखोगे तो ये 5 है. ओके, इंपॉर्टेंट एलिफेंट रिजर्व्स याद हो गए, दिमाग में इमेज क्रिएट हुआ कहाँ पे कौन सा प्लेस है. ओके, सो मल्टीपल रिवीजन यू डू. ओके, ऐसी रिवाइज होगा, बार बार आप पढ़ोगे, देखोगे. अभी हम करेंगे आगे और टाइगर रिजर्व, कुछ भी और भी देखेंगे इंस्टीट्यूशंस तो याद होगा धीरे धीरे. ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे, बाइक का हो गया. Then traffic. Next organization is traffic. Are you all getting or not? Are you all getting? Sir, what we are doing? Is it okay, fine or not? क्यों ऋतिक, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है सब? चलो निशा, are you getting? समझ में आ रहा है? चलो, अभी इसमें क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको याद करनी पड़ेंगी. हमें रिपीटेटिव 5-6 और इंस्टीट्यूशन है जो आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, समझ लो. प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा आपको और कभी कभी मेंस में भी. गेटिंग? नाउ ट्रैफिक. राइट डाउन. वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क. वाइल्ड-लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क. हेडिंग. This is the next organization. It is a non-governmental organization. अब वो क्या था? गवर्नमेंटल था. This is a non-governmental. It's an NGO. It is a non-governmental organization founded in 1976. It's a non-governmental organization founded in 1976. Next point. Established as a joint program. Established as a joint program of the established as a joint program of the Worldwide Fund of Nature, Worldwide Fund for Nature, WWF plus IUCN.